Hello students, welcome to the SS Science World. Today in molecular biology, we are going to proceed with further more information. We will get more information about RNA and DNA and about their structure, their roles. So let's proceed. Now, first of all, how RNA is made up of. So RNA is a polymer of ribonucleotides. Ribonucleotides and the basic unit is NMP. So one unit of NMP combined with another unit of NMP and more than one units of NMPs combined together and form polymer of ribonucleotide, which in turn form what? It will form RNA. Now, DNA is the polymer of deoxyribonucleotides. Um, in DNA, we all know that deoxyribonucleotides are the basic ribose, deoxyribose sugar is present in DNA and ribose sugar present in RNA. So here in DNA, DNMP is a basic unit. So one unit of DNMP combined with another unit of DNMP and with one more unit of DNMP, more unit of DNMP and one more unit of DNMP and continue. ये process जब तक चलता रहेगा, so it will form a polymer structure, polymer structure of D-ribonucleotides, which in turn into formation of DNA. So यहाँ तक clear है? Now polymer of nucleotides. Polymer of nucleotides. Both of these are what? Polymer of nucleotides. Okay. One more thing I will tell you that the basic difference between दो चीजें हमें सुनने में आती हैं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड so it's a DNA structure, we all know that. Okay, I am talking about nucleoside. First of all, I am talking about nucleoside. So what will happen, न्यूक्लियोसाइड में एक तो होगा नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों बेस पेयर से एक नाइट्रोजन बेस कंबाइंड विद अनदर nitrogen base and with hydrogen bond and it will form a nitrogenous base pair. ये है पूरा nitrogenous base pair. Okay. Now this strain is made up of what? This strain is made up of sugar and phosphate. So it is formed of sugar moiety. Okay. So यहाँ तक का जो structure है कि nitrogenous base pairs plus sugar. Nitrogenous base pairs plus sugar is what? It's a nucleoside structure. Now when अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? इट्स अ डीएनए. सॉरी, आई एम टेकिंग सम अदर कलर पेन. दूसरा वाला कलर पेन लेते हैं हम ताकि हमें चीजें और इजीली समझ में आए. तो इट्स अ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, इट्स अ डीएनए स्ट्रैंड. डीएनए स्ट्रैंड. ओहो, 1 मिनट, इसमें बहुत ये दिक्कत आती है. ठीक है, इट्स अ डीएनए स्ट्रैंड. नाउ डीएनए स्ट्रैंड में हमने पहले न्यूक्लियोसाइड में क्या पढ़ा था? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स. यहाँ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स है कंबाइंड विद हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन strand is made up of what? It is made up of sugar moiety. Now this sugar moiety contain one more thing and that is our phosphate group. It's a phosphate group. And phosphate group is added to the sugar moiety. तो अब हमारे पास क्या आ गया? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स प्लस sugar plus what? Plus phosphate. So it's a structure of nucleotide
एंड अगर फॉस्फेट इज एब्सेंट देन इट इज व्हाट, इट इज न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है आई होप कि न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड से, वो अलग क्यों है। तो वन मोर थिंग आई विल टेल यू, दैट इज व्हाट, हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइड में एब्सेंट होता है फॉस्फेट या टाइड में एब्सेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम न्यूमरिक पढ़ते हैं ए बी एंड सी, यानी कि न्यूमरिक में पढ़ते हैं ए को 1 नंबर दिया जाता है, बी को बी को 2 एंड सी को दिया जाता है C नंबर। ठीक है, इसी तरह से जब टी का नंबर आता है तो आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं। फिंगर पे जब आप काउंट करेंगे तो टी जो है वो, उसका नंबर आता है 20। तो इसका टी का रोल नंबर क्या है, 20 है। सी का रोल नंबर क्या है, 3 है। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इस तरह से जब टी तक आएंगे तो टी का जो रोल नंबर होता है वो क्या होता है, सी। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो सबसे बड़ा क्या होता है, 20 होता है या 3 होता है, 3 से बड़ा 20 होता है, 20 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो टी इज ग्रेटर देन सी, सी से बड़ा टी है। तो बड़े स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक चीज और ऐड हो जाएगी एंड दैट इज अवर फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड इन अवर न्यूक्लियोटाइड। और सी जो है वो छोटा होता है, इसलिए इसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होगा। तो इस ये एक याद करने का तरीका है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है या साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे ही कोई बोलेगा न्यूक्लियोसाइड, फटाफट आपके ब्रेन में, आपके माइंड में ये चीज ब्लिंक होगी कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो क्या होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है और टाइड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आई होप यहाँ तक ये चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। आगे की हम बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और है जो हमें याद रखनी है, एंड दैट इज अवर नेगेटिव चार्ज। डीएनए पे pH 7 पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। कैसे रहेगा और क्यों रहेगा, इसकी हम बात करते हैं। तो अभी हमने बात की थी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की, जिसमें हमने देखा कि शुगर के साथ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है इसका, इस पे क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है PO3 माइनस। तो माइनस क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो दिस माइनस गिव्स कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड अ नेगेटिव चार्ज। तो इसी वजह से जो है इसकी जो चार्ज होता है डीएनए का, वो नेगेटिव चार्ज होगा PS 7 पे। नाउ बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, तो उस फॉर्म में क्या होता है, जब न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट्स कंबाइन होती हैं, जिस तरह यहाँ हमने बताया न्यूक्लियोटाइड्स की जो यूनिट्स कंबाइन हो रही है और उससे क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो रहा है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसको फॉर्मेशन के दौरान जो पायरोफॉस्फेट, जो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है PPI, उसकी जो बीटा और गामा यूनिट है, ये बीटा एंड गामा, एक और होती है यूनिट अल्फा पी। अल्फा पी अटैच रहती है और उसके बाद जो ये दो यूनिट्स हैं वो रिमूव हो जाती है, बीटा और गामा। ये अल्फा यूनिट है जो अटैच रहती है। इसका पूरा प्रोसेस किस तरह होता है ये हम फर्दर न्यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो यहाँ तक आई होप यू ऑल completely understand what I am going to say. I hope यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर होंगी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज मेजर फॉर्म ऑफ RNA। तो मेजर फॉर्म्स जो है RNA की वो क्या है, mRNA, tRNA एंड rRNA। mRNA, tRNA एंड rRNA, इसको इसी सीक्वेंस में आप लोग याद रखिए। क्यों, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा MTR। जब टीचर्स बोलते हैं कोई फॉर्मूला जब रटने वाला होता है, उसका कोई हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, बस वो फॉर्मूला है, हमें उसको रटना है, तो हम MTR यूज करते हैं, मीन्स मुझे तो रटो। तो इससे हम MTR से यूज कर सकते हैं, मुझे तो रटो। ये आपको सीक्वेंस रटनी है। क्यों रटनी है, बिकॉज
सबसे पहले रोल में आता है mRNA, देन आता है tRNA एंड देन आता है rRNA। ठीक है, जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए फंक्शन में आएगा, देन टीआरएनए का रोल आएगा, देन आरआरएनए का रोल आएगा। तो mRNA is what mRNA contain information for translation. tRNA is amino acid carrier and it act as an adapter or carrier protein, and rRNA is ribosome organization RNA। ओके, राइबोसोम की ऑर्गेनाइजेशन में जो हेल्प करेगा वो कौन होगा? rRNA होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं कि ये जो जितने भी आरएनए है ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। पहली बात, जनरली दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड एंड हैव वेरियस सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सो ये जब सिंगल स्ट्रैंडेड है इस फॉर्म में इट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ इफ it become in a loop form, then if it forms this loop like structure, then it is what? It is its secondary structure. Okay, it's what? It's is secondary structure. Now this secondary structure further going to fold it and it will form our tertiary structure. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया कि जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स हैं आरएनए के वो पहले प्राइमरी होगा, देन इट बिकम सेकेंडरी एंड देन इट बिकम टर्शरी इन स्ट्रक्चर। नाउ आरएनए इज responsible for proceeding information for प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेगा वो आरएनए प्रोवाइड करेगा। आरएनए अपनी कॉपीज पहले फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म मेनी कॉपीज एंड देन सिंगल बताती हूँ, इट विल फॉर्म मेनी कॉपीज सिंगल स्ट्रैंडेड में। mRNA ने काफी सारी कॉपीज बना दी एंड देन क्या होगा? उससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3, इस तरह से अलग अलग तरह के प्रोटीन फॉर्म होंगे। ओके, नाउ DNA also make its copies and RNA also make its copies, and RNA is responsible for protein synthesis. The process is known as translation, and RNA, when RNA is formed from DNA, it is known as process is known as transcription, and when RNA form again DNA, double strand DNA, it is known as reverse transcription. डीएनए से हमेशा आरएनए बनेगा, ये हम लोगों को मालूम है। We know it very very well that DNA will form RNA, but जनरली तो यही होगा कि डीएनए से आरएनए बनेगा, बट इफ आरएनए विल कन्वर्ट इनटू डीएनए, this process is known as reverse transcription, and the enzyme which is responsible for doing this is reverse transcriptase. Okay, यहाँ तक क्लियर है? Now the process which is going to happen is RNA plays some important role. First role is its regulatory roles इन जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन में जीन रेगुलेशन करेगा, मीन्स कितना जीन एक्सप्रेस करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ तक करना है, कौन सा जीन हमें रोकना है। अगर मान लीजिए कोई डिजीज का जीन एक्सप्रेस हो जाता है, इफ एनी डिजीज कंटेनिंग जीन गेटिंग एक्सप्रेस, मीन्स फिर वो डिजीज कॉज करेगा, हेरिडिटरी डिजीजेस होंगी, तो उसे होने से रोकना है। इसी के लिए आरएनए जो है प्रॉपरली अपना रोल फंक्शनिंग में करना इम्पॉर्टेंट है। एंड जो आरएनए रिस्पॉन्सिबल है दैट आर जीआरएनए मीन्स गाइड आरएनए, एमआईआरएनए दैट इज माइक्रो आरएनए, and siRNA. These are the three RNA which plays important role in gene expression. Okay. Now second role it will play is act as enzyme, and there it will called as ribozymes. Ribo means the term used ribo for RNA,
और ये जब एंजाइम की तरह एक्ट करेगा तो आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है तो राइबो प्लस एंजाइम दैट इज राइबोजाइम्स। थर्ड रोल वो प्ले करेगा एडेप्टर की तरह, कैरियर मॉलिक्यूल की तरह, जो कि टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। एंड टीआरएनए विल टेक द कोडोन्स and help in carrier help as a carrier molecule. Now one more thing, RNA plays a structural role in the form of rRNA, that is also known as ribosomal RNA. प्रोटीन टारगेटिंग में भी वो रोल प्ले करेगा। कौन सा आरएनए? ScRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, SRP, ठीक है, ये सब चीजें। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट्स, डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्ट्स की प्रोसेसिंग में भी कौन हेल्प रोल प्ले करेगा? आरएनए। अब यहाँ तक तो है आरएनए की रोल की बात। नाउ हम देखेंगे कि एमआरएनए कैसे फॉर्म हुआ, हाउ एमआरएनए फॉर्म्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, synthesis of pre-mRNA takes place. This pre-mRNA will going through various processing and snRNA is responsible for that. And इससे ये एक्सोन को रिमूव होगा, इंट्रॉन्स कनेक्ट होंगे। ये सारा प्रोसेस जो है ये मैं शॉर्ट में आप लोग बता रही हूँ। वी विल स्टडी वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल। सो इंट्रॉन्स जो है वो कनेक्ट होंगे, एक्सोन्स को रिमूव किया जाता है प्री एमआरएनए से। एंड जो है यहाँ से ये जो गैप है ये एक्सोन्स को हमने रिमूव कर दिया और उसके बाद जो है ये एक सिंपल एक लीनियर हो गया। सारे इंट्रॉन्स जो है उनको कंबाइन कर दिया गया है और उस कॉम्बिनेशन से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ आरआरएनए में क्या होगा? आरआरएनए में भी प्री आरआरएनए बनेगा। वहां पे एसएनआरएनए रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ एसएनओआरएनए है। वो आईटीएस सीक्वेंसेस को रिमूव करेगा एंड उससे फिर मेच्योर आरआरएनए का फॉर्मेशन होगा। नाउ we are going to talk about राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे एन का मतलब है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की काफी सारी यूनिट्स कंबाइन होंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था, काफी सारी यूनिट्स, एक यूनिट से बहुत सारी यूनिट्स कंबाइन होके फॉर्म करेंगी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑब्लिक एन। ठीक है, ये एन का मतलब है पॉलीमर स्ट्रक्चर है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, जिसमें क्या होता है बेसिक एक यूनिट का अगर हम स्टडी करें, इट विल कंटेन नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या क्या होता है? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स विल कंबाइंड विद पायरिमिडीन्स, यानी एक स्ट्रैंड में प्यूरिन्स प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स पायरिमिडीन, कुछ भी प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में हो सकती है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह से भी वो स्कैटर्ड फॉर्म में हो सकती है। शुगर जो है आरएनए की बात करेंगे तो इसीलिए राइबोस शुगर यहाँ यूज में आएगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, टीआरएनए की बात करेंगे तो टीआरएनए में सम एक्स्ट्रा structures are present. Those structures are DHU, pseudouracil, methylated uracil को बोल, और राइबोथाइमिडीन, हाइपोजेंथिन, methylated adenine, methylated guanine। ये सभी स्ट्रक्चर टीआरएनए में मॉडिफाइड बेसिस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नाउ आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, ये हमने देख लिया था। If it is single stranded, it is its primary structure. If it getting in a loop form, it will form its secondary structure. And if some more further folding occur in this secondary structure, it will convert it into its tertiary structure. This 3D structure RNA can also also act as an protein. Okay. प्रोटीन की तरह भी आरएनए यूज एक्ट करेगा अगर वो
टर्शरी फॉर्म में आ जाता है। नाउ अब बात करेंगे मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस के बारे में। नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस आर लेसर देन प्रोटीन्स बट ग्रेटर देन डीएनए, यानी कि जो कॉन्फर्मेशंस जो होती हैं, कॉन्फर्मेशंस क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो जो कॉन्फर्मेशंस हैं वो प्रोटीन से कम होती है लेकिन डीएनए से ज्यादा अमाउंट में होती हैं। ठीक है, प्रोटीन से कम क्यों होंगी? क्योंकि प्रोटीन हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो जो भी कॉन्फर्मेशन है यानी कि जो आरएनए की कॉपीज है वो क्या होंगी, वो कम होंगी, लेकिन उनसे जो प्रोटीन बनेगा वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि एक एमआरएनए से काफी सारा प्रोटीन बन सकता है। जो एक एमआरएनए है वो काफी सारे प्रोटीन यूनिट्स को क्रिएट कर सकता है, इसीलिए नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन कम होंगी प्रोटीन से, लेकिन डीएनए से ज्यादा होंगी, क्योंकि एक डीएनए से क्या होगा, एक डीएनए से यानी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड से ये वाला जो है, एक बार एमआरएनए बन गया निकल गया, दूसरा एमआरएनए बना निकला, तीसरा बना निकला, तो इस तरह से एमआरएनए एक इस जीन का, एक यूनिट ऑफ जीन का बनता जाएगा। तो डीएनए से तो वो ज्यादा होगा लेकिन प्रोटीन से वो कम होगा, क्योंकि अब जो ये डीएनए ये जो एमआरएनए डीएनए से बन के निकला है, ये एक एमआरएनए भी काफी सारे प्रोटीन्स को क्रिएट करेगा। इसीलिए क्या होगा, डीएनए कम होगा, आरएनए डीएनए के कंपैरिजन में ज्यादा होगा अमाउंट में, और प्रोटीन आरएनए से भी ज्यादा होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे। ठीक है ना, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन हैविंग 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए स्ट्रक्चर में हमें पता है ना 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये हम देख ही चुके हैं। नाउ हम बात करेंगे आरएनए की फर्दर मोर, अगर हम बात करते हैं तो आरएनए ऑल्सो एक्ट एज अ जीनोम। जीनोम की तरह जब वो एक्ट करेगा तो किस तरह से एक्ट करेगा, यानी कि जो कुछ वायरसेस होते हैं उनमें आरएन डीएनए जो है वो जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता, वहाँ हेरिडिटरी यानी कि हेरिडिटरी फॉर्म में कौन प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा। तो फ्रैंकल एंड कॉमन ने डिस्कवर किया था ये सबसे पहले टीएमवी वायरस, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर होता है। इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर और ऑफ आरएनए एंड it will covered with a protein। ठीक है, इस तरह से ये प्रोटीन से कवर्ड है। तो ये चीज हम डायग्राम में तो देख ही रहे हैं, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बना है तो इसे हम डायग्राम में देख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन से कवर्ड होगा, किस में होगा, ये टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस में। टीएमवी प्रोटीन नॉट सफिशिएंट टू कॉज डिजीज, बट अगर आरएनए उसमें एडेड है तो इट शुड बी इट शुड इट विल कॉज टोबैको मोज़ेक डिजीज, ओके, इन प्लांट्स में होगा ये। अब हम बात करेंगे एनिमल वायरसेस की। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एनिमल वायरसेस में भी वर्क करेगा और वो कॉज करेगा इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मीजल्स, कॉमन कोल्ड। रिट्रोवायरसेस की फॉर्म में अगर होगा तो HIV एंड HTLV। रिट्रोवायरसेस कौन होते हैं, रिट्रोवायरसेस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कॉज करते हैं, इसका भी हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे आगे। अभी यहाँ बेसिक में आप लोग इतना समझ लीजिए, रिट्रोवायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नाउ double-stranded RNA also found and that are found in reoviruses। reoviruses जो है वो अलग चीज है, उसमें डबल स्ट्रैंडेड में एक one is a minus strand and another one is a plus strand। So plus strand is responsible for transcription and minus strand is responsible for replication। They will increase their copy number
एंड माइनस स्ट्रेन जैसे कि हमने बात की थी अभी, it is responsible for replication. Plus strain is responsible for transcription and also for translation. In some species, this minus strain act as plus strain, and the plus strain which generally used in many species. In some species, this minus strain will act as plus strain. Means जो भी प्लस स्ट्रैंड का रोल था, क्या रोल था, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करने का, वो अब कौन करेगा, कुछ स्पीशीज में माइनस स्ट्रैंड करेगा, और कुछ स्पीशीज में, उन्हीं स्पीशीज में जिनमें माइनस स्ट्रैंड जो है वो प्लस का रोल प्ले कर रहा है, उन्हीं में माइनस स्ट्रैंड जो रोल करेगा वो प्लस का करेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का रोल यहाँ माइनस स्ट्रैंड करेगा, और रेप्लिकेशन का रोल प्ले करेगा प्लस स्ट्रैंड। ओके, तो ये कुछ ही स्पीशीज में होगा, जनरली माइनस स्ट्रैंड ही रोल प्ले करेगा रेप्लिकेशन का, एंड प्लस स्ट्रैंड ऑलवेज एक्ट फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है, आई होप एंड आई विश कि यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पूरी बात की आज। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक, then you can ask me in comment section. I will definitely answering you, and you can also join my telegram link जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए, डाल दिए। तो यू कैन ऐड मी देयर ऑल्सो। वहाँ पे आपके सारे नोट्स वगैरह हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो सभी आपको वहाँ पे भी मिल सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल से एडेड हैं तो इसमें बेनिफिट ये है कि मैं आप लोगों को ये नोट्स साथ के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये है कि नहीं, हमें तो हैंड रिटन नोट्स चाहिए, उसकी प्रिंट आउट चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। उसके लिए यू कैन ज्वाइन विद मी इन माय टेलीग्राम ग्रुप एसएस साइंस वर्ल्ड। वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉयमेंट।